Hello, good morning, students. It's Gurpal Singh, your accountancy and economics teacher. So, students, today we are going to solve the numericals related to dissolution of partnership firm. Okay. So, first of all, I will show you the question, and today's topic is when balance sheet is not given, and then how we have to prepare a balance sheet and calculate the value of assets. So, this question is question number 18 from DK Goyal book. From where? From DK Goyal book. So if you are having books, then you can open your book and see question number 18. If you are not having books, then please see on the screen. Question is A and B were a partners in sharing profit in the ratio of 4:3. ठीक है, 4/7 and 3/7 is given. That's why we have to mean as 4 ratio is 4:3. Okay. Now it is decided to dissolve the firm on 31 March 2018. फर्म का डिसोल्यूशन कब होना है? 31 March 2018. The capital of A, B is given, creditor given, and cash balance is given. Remaining assets realized at 1,24,910. ठीक है. After that, expenses of dissolution is 1,860. A and B both were insolvent. A and B both were insolvent. Okay. So now what we will do? First of all, students, we will prepare balance sheet. What? Balance sheet. From the balance sheet we will be able to know the value of sundry assets. So see how we will prepare balance sheet. First of all, I will show you balance sheet and I will tell you how we have to prepare a balance sheet. See, in the question, whatever items are given, whatever appeared in the balance sheets, we have to write first of all. So prepare first of all balance sheet format, write balance sheet. In bracket you can write memorandum balance sheet. उन्हें मैंने यहाँ balance sheet लिख रखा है. You can write memorandum balance sheet. What? Memorandum balance sheet. Okay. So now in the liability side you have given the creditors. So firstly you have to write creditors that were for 23,150. Okay. After that write capitals A and B written. Now in the asset side only one item of assets is given, that is cash. So write cash 4520. Okay. अब आप डेबिट लाइबिलिटी साइड का सम करेंगे 1,50,250 आ जाएगा. ये असेट्स गिवन नहीं है बेटा, दीज आर नॉट गिवन. ओके. नाउ व्हाट यू विल डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट कैश बैलेंस फ्रॉम द टोटल ऑफ लाइबिलिटी. 1,50,250 है. फ्रॉम दिस आई विल सब्ट्रैक्ट 4520. ठीक है, मैं माइनस करूँगा तो कितना आएगा, जो भी बैलेंस आएगा वो होगा 1,45,730. सो राइट इन एसेट साइड सन्ड्री एसेट्स, उसके नीचे लिख दीजिए बैलेंस शीट फिगर एंड राइट 1,45,730. ओके. सो दिस वे वी विल प्रिपेयर मेमोरेंडम बैलेंस शीट. नाउ वी विल प्रिपेयर रियलाइजेशन. तो ऑलरेडी यू नो वी हैव टू ट्रांसफर असेट्स इन डेबिट साइड, तो यहाँ आ जाएगा क्रेडिटर्स इन लाइबिलिटी साइड, तो वी हैव रिटन क्रेडिटर हियर. ओके. आफ्टर दैट इन द क्वेश्चन इट इज सेइंग कि assets were realized for 1,24,910. That is why we have to write by cash 1,24,910. Okay. And in the question it is also saying कि expenses on realization were 1,860. So we will write to cash account 1,860. Creditors के बारे में information is not given. So directly we will write बेटा to cash account 23150. हम लोग लिख देंगे. ठीक है. नाउ वी विल सम द डेबिट साइड. डेबिट साइड का सम ज़्यादा होगा, सम करेंगे. ओके. उसके बाद जो भी सम आ रहा है, अब सम कर लीजिए कितना आ रहा है, टोटल कर लीजिए. एंड आफ्टर दैट सब्ट्रैक्ट दिस वन, देन यू विल गेट लॉस, दैट विल बी 22,680. ठीक है. तो 22,680 वॉट एवर वी हैव गॉटेड लॉस, इसको हम लोग 4:3 में बांटेंगे. तो ए विल गेट 4/7, then it will become 12,960. Whenever we convert 20,680 into 3/7, then you will get 9,720. Okay. So this way realization account हमारा प्रिपेयर हो गया. ठीक है. नेक्स्ट बढ़ते हैं. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Question number 23. So open in your books. Question number 23. In this question there are some additional adjustment. That is why I have selected this question. Question is PQR partners. On 1st April 17, they decided to share profit in the ratio of 2:2:1. Okay. Capital of APQR were 40, 30, 20. They were entitled interest on capital 6% per annum. During the year, firm earned profit before interest that was 25,000. ठीक है. Partners were withdrawn means drawing भी दे रखी है. On 31st March, the firm was dissolved. Asset realized for 1 lakh. The creditor 15,000 and paid at a discount of 3%. ओके, कि जब रियलाइज होंगे तो इस तरह से कर लेना है. एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 1450. बट द मेन थिंग इज दैट यू डोंट नो अबाउट द एक्चुअल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स as well as what you are also not knowing about the value of assets. So first of all we have to prepare PL appropriation account by which we can treat this interest on capital जो भी पीछे chapter 1 में करा था. After that we have to prepare a capital account by which we will able to know about the closing capital. Okay, so see here on the screen I have prepared profit and loss appropriation account. So the profit was given 25,000. Prepare format first. Then write first entry by balance BD. You can write by profit and loss account. You can write by profit and loss account. That was 25,000. Okay. Now write interest on capital. The interest on capital will be charged. Rate given है 2400, 1800, 1200. Okay, तो sum will be 5400. नाउ आप 25,000 टोटल क्रेडिट साइड का आ रहा है, उसमें से 5400 माइनस कर दीजिए. यू विल गेट 19,600. ठीक है. अब इस 19,600 को हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे? 2:1 में. ठीक है. तो डिवाइड कर दिया गया. 7840, 7840, 3920, 3920 आ जाएगा. ठीक है. दिस वॉज द PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे. ठीक है. डायरेक्ट आप चाहो तो कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो, जिसमें आपको लिखना होगा बाय बैलेंस BD फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तीनों एंट्रियाँ नोट करके डेबिट साइड में 2 बैलेंस CD कर देंगे. आपको क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है. ड्राइंग माइनस करनी पड़ेगी आपको. देखिए बैलेंस शीट हम लोग डायरेक्ट बना लेते हैं. क्रेडिटर्स वी आर हैविंग 15,000. देखिए पी की ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 40,000. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाएगा, नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, ड्राइंग आप माइनस कर दीजिए 10,000. 40,240 कैपिटल आ गई. इस तरह से क्यू की कैपिटल है 30,000. आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दीजिए, नेट प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, ड्राइंग माइनस कर दीजिए. ठीक है. आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक कैपिटल अकाउंट इस तरह से बना लीजिए. कैपिटल अकाउंट मैं एक का बना के दिखा देता हूँ, बाकी का आप लोग सब बना लीजिए उसी के आगे. जैसे मान लीजिए आई एम प्रिपेयरिंग ऑफ P, तो बाई बैलेंस BD. P की कैपिटल कितनी है? 40,000 है, 40 लिख दिया मैंने ओनली. फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राइट 7840. ठीक है. उसके बाद में और तो कुछ भी नहीं है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सॉरी प्रॉफिट भी है, बाई प्रॉफिट लिख दीजिए. सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा, 2400 लिख दीजिए. अब डेबिट साइड में लिख दीजिए टू ड्राइंग. ठीक है. ड्राइंग कितनी है? 10,000. अब आप इसका सम करेंगे बेटे, उसके बाद से 10,000 माइनस करोगे जब आप, तो आपका पास 2 बैलेंस CD आ जाएगा. तो दिस विल बी 30,000. ठीक है. कितना हो जाएगा? 30,000. तो सेम चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो. दोबारा कैलकुलेशन नहीं करने के इच्छुक हो तो डायरेक्टली यू कैन प्रिपेयर दिस वे. ठीक है. सो हेयर वी विल गॉटेड द सम ऑफ द डेबिट लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट विल बी 1,07,000. ठीक है. तो यही हमारे एसेट्स की वैल्यू हो जाएगी. सन्ड्री एसेट्स से बैलेंसिंग फिगर कर दी जाएगी. ठीक है. कहीं पे अगर हमारे पास असेट्स गिवन हैं, कैश बैलेंस नहीं गिवन है, तो हम लोग कैश अकाउंट के नाम से बैलेंसिंग फिगर कर सकते हैं. या फिर कैश भी गिवन है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से हो जाएगी. और लायबिलिटी साइड अगर कुछ सब कुछ दे रखा है, PL अकाउंट नहीं दे रखा है, बैलेंस शीट इक्वल नहीं आ रही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंस आप कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस वाज द बैलेंस शीट. नाउ वी विल प्रिपेयर रियलाइजेशन. डायरेक्ट एंट्री आपको पता ही है. 200 सन्ड्री एसेट्स पहले ट्रांसफर करिए, देन आफ्टर ट्रांसफर क्रेडिटर्स बाई क्रेडिटर्स. नाउ असेट्स वर रियलाइज फॉर 1 लाख, तो यू हैव टू राइट 1 लाख. क्रेडिटर वर पेड एट ए डिस्काउंट, सो वी हैव रिटर्न टू कैश अकाउंट 14500. ठीक है. जो भी डिस्काउंट था वो माइनस कर दिया. एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन वाज 1450, सो आई हैव रिटर्न टू कैश एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन 1450. अब मैंने टोटल किया तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, दैट इज़ 1,23,000. तो इसको दोनों साइड लिखेंगे, डबल लाइन कर दीजिएगा टोटल लिख के. एंड क्रेडिट का आ रहा है 1,15,000. तो 18,000 विल बी द
लॉस ऑन रियलाइजेशन, तो वो आपका लॉस 2:1 में सारे पार्टनर्स को ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, आई होप रियलाइजेशन ये आपको समझ में आ गया। नाउ कम टू द कैपिटल अकाउंट, वी विल राइट बाई बैलेंस बी डी कैपिटल, जो भी बैलेंस शीट में लिखी थी हमने, अगर आपने वैसे करा है तो जो बाहर अमाउंट के कॉलम में वही कैपिटल आपको यहाँ नोट करनी होगी। और इफ़ यू हैव प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट अर्लियर देन नो नीड टू राइट द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ दैट कैपिटल अकाउंट हेयर। ठीक है, आप उस कैपिटल अकाउंट की क्लोजिंग फिगर को यहाँ लिखेंगे। बाई बैलेंस बी डी दिस वन, ओके, यू हैव टू ट्रांसफर लॉस इन डेबिट साइड 3200 1600। आफ्टर दैट फाइनल पेमेंट विल बी, अब क्रेडिट साइड का सम ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो माइनस कर देंगे, तो आपकी पी को पेमेंट हो जाएगी 37,040। ठीक है, और टोटल करके आप क्या कर देंगे, डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। ओके, दिस वॉज द कैपिटल अकाउंट। नाउ दिस इज आई एम शोइंग यू, इट इज़ कैश अकाउंट। इन कैश अकाउंट देयर वाज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, डायरेक्टली रियलाइजेशन से कैश की एंट्रियाँ मिली थी। सो टू रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख, आफ्टर दैट पेमेंट कितना करा 1450 का, क्रेडिटर्स एक्सपेंस 1450 एंड पेमेंट टू पार्टनर वाज दिस मच। ठीक है, तो जितना कैश आया उतना पेमेंट कंपनी से हो गया, बोथ आर इक्वल, इट मीन्स आर क्वेश्चन इज करेक्ट। ठीक है, आप जब टोटल लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा यू हैव टू पुट डबल लाइन। ओके, नाउ we will solve one more question, that is question number 28. So see in question number 28, sharing ratio is 7:2:1, creditor are given, provision for depreciation is given, capitals are given, here assets are also given, okay, goodwill is also given। okay, देखते हैं क्या क्या होगा आगे। एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है। एडजस्टमेंट, एक्स टुक ओवर बिल्डिंग। ठीक है, वाई विल कंटिन्यू बिजनेस टू टेक ओवर गुडविल, वाई इज परचेसिंग गुडविल, स्टॉक, डेप्टर्स एट बुक वैल्यूज। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है बिकॉज हेयर पार्टनर्स आर टेकिंग थिंग्स। ओके, सो जेड एग्री टू टेक शेयर्स एट ₹5 ईच, तो 100 शेयर हैं, 5000 के हो गए, 60 हैं तो 5 300 के हो गए ये। ठीक है, द शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड डिवाइडेड इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो बी लिमिटेड के हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएंगे। ओके, सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में सारे एसेट डेबिट साइड ट्रांसफ़र कर दिए हमने, लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड कर दिया, दोनों को दो ही लाइबिलिटी थी। नाउ कम टू द पॉइंट, ए वॉज टेकिंग बिल्डिंग, सो दैट इज़ वाई आई हैव रिटन हियर बाई एस कैपिटल अकाउंट 7300 पे खरीद रहा था, खरीद दिया। बाई वाइस कैपिटल, वाई ने काफ़ी सारे एसेट्स लिए हैं, सारे एसेट्स का नाम लिख दिया जाएगा जितने पे जो एसेट्स लिए हैं। ये परचेज गुडविल फॉर 3000, स्टॉक फॉर 3498, डेटर्स फॉर 1746, पेटेंट्स फॉर 6500, मशीनरी फॉर 1500, सबका सम करेंगे तो 16,244 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस थिंग वाज परचेस्ड बाई वाई। ओके, जेड क्या खरीद रहा था, शेयर्स खरीद रहा था, 300 का आपका ये आ जाएगा। एक्स के कैपिटल अकाउंट, एक्स भी शेयर खरीद रहा था 1400 के, वाई भी शेयर खरीद रहा था 400 के, तो ये 400 हो जाएगा। आफ्टर दैट जेड, तो बोथ व पार्टनर वर परचेसिंग शेयर इन शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो इसलिए तीनों पार्टनर्स को हम लोगों ने शेयर्स दे दिए, एक्स वाई जेड को जो बी के थे, एंड ए शेयर वर परचेस्ड बाई जेड ओनली, तो इसलिए 300 जेड के कॉलम में ओनली आ गया है। ठीक है, सो ये थी एंट्रियाँ एसेट्स की। नाउ कम फॉर लाइबिलिटी, वाई वाज पेइंग फॉर क्रेडिटर, तो 2 वाइस कैपिटल 3142 लिख दिया, एंड आफ्टर दैट और कोई एंट्री है नहीं, एक्सपेंस रिलेशन की है नहीं। सम करेंगे, क्रेडिट साइड का सम ज़्यादा आ रहा है, डेबिट आप माइनस करेंगे, जो भी सम आ रहा है लिख लीजिएगा। देन आफ्टर दैट देयर विल बी प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन 520 एंड दिस विल बी डिवाइडेड इनटू 7:2:1। ठीक है, तो अब किस तरह से बटा है, 520 इंटू 7/10। ठीक है, 0 0 काट दिया, 364 हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट बाई बैलेंस बी डी, देन बाई क्रेडिटर्स, देन बाई रियलाइजेशन, जो रियलाइजेशन की जो भी एंट्रियाँ पार्टनर से रिलेटेड हैं दैट ऑल विल बी ट्रांसफर्ड हेयर। ओके, बाई कैश अकाउंट, जो पार्टनर कैश लेकर के आ रहा था, ये बाद की एंट्री, इसको आप छोड़ दीजिए अभी। टू रियलाइजेशन असेट्स खरीदे थे एक्स वाई ने, टू रियलाइजेशन जेड ने शेयर खरीदे थे 300 के, फिर टू रियलाइजेशन जो शेयर तीनों पार्टनर ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में खरीदे थे। अब सम करेंगे, 8700 आ रहा है एक्स का डेबिट साइड का, क्रेडिट कम आ रहा है, दैट इज़ वाई वी हैव टू राइट बाई कैश अकाउंट। एक्स पेमेंट देगा कितना, 47504। इस तरह से वाई का डेबिट का टोटल आ रहा है 16400, क्रेडिट कम आ रहा है, इसलिए हम लोगों को 10,600 फर्म को किससे मिलेंगे, वाई से मिलेंगे। एंड जेड इज़ 16,176, उसकी डेबिट ओनली 500 है, तो 15,676 विल बी पेड बाई फर्म टू
सेड। ओके, टोटल लिखने के बाद डबल लाइन कर लीजिएगा इसमें भी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। दिस इज द कैश अकाउंट। देखिए टू बैलेंस बी डी कैश बैलेंस 2/54 है। एक्स कितना लेके आया 4754, वाई कितना लेकर के आया 10,678 एंड जेड ने पेमेंट कितना हुआ 15676, ठीक है। तो इतना सा ये हमारा क्या था, कैश अकाउंट था। बोथ द साइड्स आर कमिंग इक्वल, हेंस इट इज़ प्रूव्ड दैट आवर क्वेश्चन इज करेक्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। इफ़ यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स फ्रॉम दीज वीडियोज़, so please like the video at the last and subscribe my channel still if you have not subscribed. Thank you.